So now we are going to understand the implementation of a linked list using C++ program. So basically in this program we are going to implement our linked list. In this program I am going to make a use of structure, और let's say structure का नाम मैंने दे दिया no. In this structure I am going to declare two variable integer info which is going to hold my data, and I am going to create a pointer which is going to hold the pointer of next link. Okay. After that I am going to make a use of another variable called as start, और इस start variable को I am going to create एक structure type का variable मैं बना रहा हूँ pointer type का. तो what the start will do, let's say this is the representation of your linked list. तो यहाँ पर ये indicate करेगा आपका starting point, और अभी आपका starting point का head भी यहाँ पर होगा और null भी यहाँ पर होगा. The moment when you are going to insert an element, let's say आपने 10 element insert करा है तो वो यहाँ से हो जाएगा. Now your head will become this variable, और tail भी क्या हो जाएगा आपका यही वाला variable. Okay. Now here in this program I am going to make a use of a class, और let's say class का नाम मैंने दे दिया list. In this class I am going to declare certain functions. We are going to implement this program with functions. तो यहाँ पर इस class के अंदर मैं functions को declare कर रहा हूँ. The first function which exactly I am going to need is, so first of all I am going to make a use of this public access specifier. तो यहाँ पर अभी हम तीन फंक्शन बनाएंगे. एक फंक्शन का मैं नाम देता हूँ insert underscore begin. This is the name of my function insert underscore begin. We are going to execute this function when we want to insert an element at the beginning of our linked list. The next function which I am going to make a use is insert underscore last. I am going to make a use this function when I want to insert an element at the last of my linked list. The next function which I am going to make a use is display, in order to display the elements of my linked list. Now in this class I am going to make a use of a constructor. So what constructor will do, as soon as we are going to create an object of this class, our constructor will get invoked. कंस्ट्रक्टर सारे ऑब्जेक्ट्स को वही सेम डेफिनेशन देता है जो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करोगे. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन करी कि लेट्स से आई वांट टू मेक दिस वेरिएबल एज नल. तो एज सून एज आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दिस स्टार्ट वेरिएबल विल बिकम नल. So in this program I am going to declare another function, और let's say उस function का नाम मैं देता हूँ create underscore node. I am going to call this function whenever I want to create a node, और इसको मैं एक parameterized function बनाता हूँ, इसको वैल्यू क्या देता हूँ, एक integer टाइप की वैल्यू. अब आप ये बताओ कि जब आप नोड बनाओगे तो उस नोड में दो पार्ट होने चाहिए, एक डेटा वाला पार्ट और द पॉइंटर टू द नेक्स्ट वेरिएबल. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन एज अ स्ट्रक्चर टाइप फंक्शन. तो यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने कैसे बना दिया, स्ट्रक्चर टाइप का फंक्शन. एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ लिंक्ड लिस्ट विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर. तो अब आपने इसका रिटर्न टाइप भी क्या स्पेसिफाई कर दिया, पॉइंटर. ऑब्वियसली बात है कि जब आप नोड बनाओगे सो यू नीड टू पार्ट्स. आपको डेटा चाहिए होगा, एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट वेरिएबल चाहिए होगा. ओके, तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को किस टाइप का बनाया है, पॉइंटर टाइप का फंक्शन और स्ट्रक्चर टाइप का. ओके, नाउ लेट्स स्विच इनटू दिस मेन पार्ट. Now in this main part we are going to call this function. Actually I am going to create this program as a menu driven program. So we are going to specify the menu here. Press 1 to insert element at the beginning, press 2 to insert element at the last, somewhat like this. So in this integer main I am going to declare certain variables. The first variable which I am going to make a use is integer choice. The next variable which I am going to make a use is, चलो वो एक बाद में करते रहेंगे. In this main I am going to create an object. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम क्या दे दिया, S1. This is going to be the object of my linked list. चलो इसको भी हम बाद में डिक्लेयर कर देते. In this integer main what exactly I am going to do is I am going to make a use of a while loop.
In this while loop, I am going to implement my menu-driven program. So यहाँ पे इस while loop में सबसे पहले मैं एक statement लिख देता हूँ C out linked list implementation. I'm going to write it over here, linked list implementation. So now here in the cout, I am going to write another statement. Let's say press 1 for inserting insert node at beginning. So user is going to press 1 in order to insert a node into the beginning. So I am going to make a use of /n over here. I'm going to make a use of this and statement. So what exactly I'm going to do is मैं इसी वाली statement को एक बार copy कर लेता हूँ, Control C and press here Control V. Now I'm going to make another option, press 2 for insert node at last. I'm going to make a use of another menu. और उस मेन्यू का मैं नाम देता हूँ प्रेस 3 in order to display the nodes. So this menu is going to display you the nodes. And finally I'm going to make a use of an exit function. So I'm going to press 4 in order to exit from this program. So after this, I am going to make a use of another statement. Let's see out /n enter your choice. So I am going to ask the choice from my user, and I am going to save this value into my variable choice, जो मैंने ऊपर declare किया था integer type का. Now here we are going to make a use of switch case. So I am going to make a use of my switch case, and in this case, in this switch I am going to pass my choice as a key. So let's say आपको कितने cases बनाने पड़ेंगे? Case 1, 2, 3 and 4. So I am going to make a use of this case 1. कि अगर user ने press किया 1. In this case 1, I am going to write a statement cout /n inserting node at the beginning. So ये statement लिखी हुई आ जाएगी whenever user is going to press 1, that inserting node at the beginning. So now here in this integer main, what exactly I am going to do is I am going to declare an object of my class S1. मैंने एक object बना लिया, and with the help of this object I am going to call the function of my class. Okay, the function मैंने बनाया insert at the beginning के लिए insert begin. This is a function which I want to call if user is going to press 1. So I am going to make a use of this and statement, and I am going to make a use of statement break. So now I am just copying this case. Let's say Control C. Now in case 2, what exactly I want is I am going to insert node at the last. This is a statement which I want to change, and the function for this is insert last. Okay. Now, in case 3, what exactly you are going to do is you are going to display the elements of your linked list. So just copy this statement. So I am going to write it here, let's say display nodes, and for this I have created a function called as display. And when user is going to press 4, you are going to exit
your user from this menu driven program. So I'm going to write that case as well, case 4, and within this case 4 I'm going to call my function called as exit. I'm going to call this function exit, and I'm going to make a use of this break statement, and finally I'm going to make a use of a default statement if some user try to insert any invalid option. So I'm going to write it as statement /n/n invalid option. Okay. For this default you did not need to make a use of break statement. So यहाँ पर अभी मेरा क्या हुआ, एक menu driven program बन गया है. So now our menu has been created. The next step is we are going to declare the function definitions. In order to declare this function definition, I am going to declare the definitions of my function outside my main. The first function which I am going to declare is insert begin. This is the function which we are going to declare. So with this function you have to declare in this class, let's say in which class you have declared this function. So I have declared this function in my class called as list. So let's say this function is declared in my class list. Now I'm going to implement the definition of this function. In this function I'm going to declare a value called as value. एक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया with the name of value. I'm going to make a use of a cout statement /n/n, let's say enter any value. Okay, so I'm going to make a use of this statement, and whenever user is going to insert any value, I'm going to store this value in my variable called as value. तो यहाँ पर अपने यूजर से एक वैल्यू ले ली और उसको एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया. Now in this function I am going to declare my structure node, and I am going to declare two variable of my structure. पहले वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया स्टार टेम्प, और एक और वेरिएबल का नाम लेट से मैंने दे दिया पॉइंटर टाइप वेरिएबल p. So यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाए पॉइंटर टाइप के टेम्पररी एंड p, विच इज ऑफ टाइप नोड, और ये नोड क्या था, आपका एक स्ट्रक्चर था. Okay. In the first step I am going to check if your start is equal to null. अगर मेरा start क्या है, null है, so I am going to make a use of a statement. Okay, before that I would like to make a use of another statement. तो let's say यहाँ पर मैं एक वेरिएबल जो मैंने लिया हुआ टेम्प, इसको मेरे को मेमोरी एलोकेट करानी है, और इसको जो मेरे को मेमोरी एलोकेट करानी है वो कितनी करानी है, जितनी मेरे स्ट्रक्चर की है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट थिंग. सो लेट्स से ये जो टेम्प एक वेरिएबल है विच इट इज ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल. नाउ इन दिस टेम्प फंक्शन आई एम गोइंग टू कॉल अ फंक्शन कॉल्ड एज क्रिएट अंडरस्कोर नोड, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा इसको वैल्यू. तो लेट्स से जो भी आपको नोड बनानी होगी वो किसके पास जाएगी, सबसे पहले क्रिएट नोड फंक्शन के पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिक्लेयर माई क्रिएट नोड फंक्शन. तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू ले ली और ये वो वैल्यू आपने किसको पास कर दी है, क्रिएट नोड फंक्शन के पास. सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड एज नोड, क्रिएट नोड. डिक्लेयर किया हुआ आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ इन दिस क्लास. अभी हमने यहाँ पर मेन्यू ड्रिवन में कहीं पे कॉल नहीं किया है. ओके, so I am going to make a use of a create node function. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ create underscore node, और इसको मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर दी है, इंटीजर वैल्यू. ये फंक्शन आपने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है, तो मैंने इसको कौन सी वैल्यू पास करी, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी. ये जो फंक्शन है ये आपने बनाया कहाँ पर, ये आपने बनाया लिस्ट क्लास के अंदर, और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो है नोड टाइप का. जो रिटर्न टाइप आपने स्पेसिफाई किया वो नोड टाइप का स्पेसिफाई किया. इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप आपने नोड स्पेसिफाई किया था. ओके, सो नाउ लेट्स
implement this function, और इस फंक्शन में समझेंगे कि how you can create a node. So in this function I am going to make a use of a node, और दो वेरिएबल बनाता हूँ मैं node टाइप के स्टार temp और एक लेट्स से मैं बनाता हूँ स्टार s. तो यहाँ पर आपने नोड टाइप के दो वेरिएबल बना दिए. अब इस टेम्प के पास दो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक इंटीजर इन्फो एंड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट वेरिएबल. सेम एस के पास क्या आ जाएगा, इंट इन्फॉर्मेशन और पॉइंटर टू द नेक्स्ट वेरिएबल. अब सबसे पहले आपको टेम्प बनाना किस तरह, लेट्स से टेम्प को आप मेमोरी एलोकेट कर दोगे स्ट्रक्चर टाइप की, लेट्स से स्ट्रक्ट node. So with the help of this new keyword I am going to allocate this temporary as a, इस टेम्प को आपने क्या क्या एलोकेट कर दिया, जो स्ट्रक्चर के पास इंफॉर्मेशन थी, और स्ट्रक्चर के पास क्या इंफॉर्मेशन थी, इंटीजर इन्फो एंड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट वेरिएबल. तो अब आपका टेम्प भी क्या क्या होल्ड कराएगा, एक दो वैल्यू, एक कराएगा इंटीजर टाइप की वैल्यू और एक और कराएगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट वेरिएबल. सो यहाँ पर आपने एक टेम्प वेरिएबल लिया है विच इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, और इसको आपने कितनी मेमोरी एलोकेट करी है, जितनी आपके स्ट्रक्चर नोड के पास है. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू चेक इफ टेम्प इज इक्वल टू नल. अगर आपका टेम्परेरी वेरिएबल नल है, मतलब उसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है. सो आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट टू सी आउट /n/n memory not allocated. तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके टेम्प वेरिएबल को ना कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है. अगर आपका टेम्प क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नल होगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न 0. मेरा प्रोग्राम यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट. अगर आपके टेम्परेरी को मेमोरी एलोकेट हो गई है, सो नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट इन एन एल्स पार्ट. तो टेम्प के इन्फो में आप क्या स्टोर करा दोगे, वो वाली वैल्यू जो आपको मिली है. टेम्प के इन्फॉर्मेशन में आप क्या वैल्यू स्टोर करा दोगे, जो वैल्यू आपको मिली है. और टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करा दोगे, नल. टेम्प के नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, नल. एंड हियर आई एम गोइंग टू रिटर्न my value temp. So this is the complete implementation of your program create node. This is a function create node और इसकी particular implementation है. So now let's understand कि ये वैल्यू किस तरीके से जाएगी. आपने किया क्या है, आपने क्या ना पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया स्टार टेम्प. आपने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया स्टार टेम्प. तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ. तो आपने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया स्टार टेम्पररी, और आपने इसको कितनी मेमोरी एलोकेट करी है, आपने इसको स्ट्रक्चर टाइप की मेमोरी एलोकेट करी है. तो इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाएगी इंटीजर इन्फॉर्मेशन विच इज गोइंग टू होल्ड योर एलिमेंट, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंटर वेरिएबल स्टार नेक्स्ट. ओके. इसके बाद अब आपने क्या किया, आपने चेक किया कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, सो आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी मेमोरी नॉट एलोकेटेड. बट अगर टेम्पररी को ये वाली मेमोरी एलोकेट हो गई है, सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, टेम्प के इंफॉर्मेशन में आपने क्या स्टोर करा दी है, वैल्यू. अब सपोज करो अब आपको वैल्यू एक आई है 20, तो आपने टेम्प के इंफॉर्मेशन में क्या वैल्यू स्टोर करा दी है, 20. ओके. और इसके बाद आपने क्या किया है, टेम्प के नेक्स्ट में आपने क्या वैल्यू स्टोर करा दी है, नल. सो यू आर गोइंग टू राइट हियर नल. अंडरस्टूड द इंप्लीमेंटेशन. So now we are going to implement this function list. तो यहाँ पर सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि अगर आपका स्टार्ट क्या है, इज इक्वल टू नल है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप स्टार्ट में वैल्यू पास करा दोगे टेम्पररी. स्टार्ट के पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेम्पररी वैल्यू. और स्टार्ट के नेक्स्ट में हम एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं, वो कराते हैं हम नल. अब लेट्स से अगर आपका स्टार्ट नल नहीं है, मींस उसके पास एक एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है. अब यूजर पे प्रेस 1, आपने ऑप्शन दे दिया इंसर्ट एट द बिगिनिंग में. सो नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर एल्स पार्ट. तो ये एल्स पार्ट क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग. अब ये बिगिन में किस तरीके से एलिमेंट करेगा, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पी वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर लिया है, विच इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर. तो पी में मैंने क्या पास कर दिया, मेरा स्टार्ट.
तो लेट्स से अगर सपोज करो स्टार्ट के पास एक 10 वाली वैल्यू है, तो p में आ गई वो 10 वाली वैल्यू। इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू 10 और लेट्स से स्टार्ट के नेक्स्ट में मैं डाल दूँगा अपना p। सो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ सी आउट में, लेट्स से /n एलिमेंट इंसर्ट। सो अब इस वाले प्रोग्राम की डेफिनेशन समझते हैं कि इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ड्राई रन करके देखते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय फंक्शन इंसर्ट बिगिनिंग। This is my function insert begin. So now let's understand how the compiler will work. Dry run से समझते हैं कि compiler किस तरीके से work करेगा। So let's start from here. Let's say आपने क्या ना यूजर से वैल्यू पूछी, enter any value, और यूजर ने ना एक वैल्यू बोल दिया आपको, let's say he want to insert a 20 वैल्यू। तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी सी इन में एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के पास। इसके बाद आपने ना दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, टेम्पररी और एक पी फॉर पॉइंटर। तो ये किस टाइप के आपने डिक्लेयर करे, नोड टाइप के, और नोड किस टाइप का है आपका, स्ट्रक्ट टाइप का है। तो मतलब टेम्प के पास अब दो पोर्शन आ जाएंगे, इंटीजर इन्फो भी और पॉइंटेड टू द नेक्स्ट वेरिएबल, और इस पी के पास भी एक इन्फो एक वेरिएबल आ जाएगा इन्फो के नाम से, और एक और वेरिएबल आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी द पॉइंटेड टू द नेक्स्ट वेरिएबल। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके टेम्प में भी आ जाएगी और पी में भी आ जाएगी। Now the next step is to you are going to call a function create underscore node value, और वो let's say वैल्यू आपकी 20 create node के पास चले गई। अब सपोज करो कि ऑलरेडी आपके पास है ना एलिमेंट लिंक्ड लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 10। तो यहाँ पे आपने चेक किया स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर मेरा स्टार्ट क्या है, बिल्कुल नल है, तो आपने क्या किया, ये जो टेम्पररी वाली इंफॉर्मेशन थी ये किस में स्टोर करा दी, स्टार्ट में। अब सपोज करो ये 21st टाइम इंसर्ट हुआ है, तो ये 21st टाइम इंसर्ट होकर स्टार्ट नाम के वेरिएबल में चला जाएगा इधर। ये कब यूज कर रहे हो, जब आपका स्टार्ट नल है, बिल्कुल नल है। तो ये 20 वैल्यू कहां पर इंसर्ट हो जाएगी, टेम्पररी वैल्यू स्टार्ट में चली जाएगी, और स्टार्ट के नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, नल। तो ये सिंटेक्स तब है। बट सपोज करो आपके पास ये स्टार्ट नल नहीं है, अंडरस्टूड। आपके पास एक और लिंक्ड लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, जिसके पास एक 10 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसके पास एक नल नाम का पॉइंटर है। आपके लिस्ट के अंदर ये ऑलरेडी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब आपका ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज योर स्टार्ट इज नॉट नल। तो अब आप किस में आ जाओगे, एल्स पार्ट में। तो अभी आपका स्टार्ट क्या है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टार्ट। तो आपने क्या इंसर्ट करा दिया, ये जो स्टार्ट की वैल्यू है ये किसके पास आपने भेज दी, पी नाम के वेरिएबल के पास। सो यहाँ पर हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ दिस स्टार्ट ये बन जाएगा आपका पी। ऑब्वियस सी बात है, ये अब आपका बन गया पी, क्योंकि आपने स्टार्ट की वैल्यू किस में भेज दी, पी में। और ये जो टेम्पररी वाली वैल्यू आई है, ये टेम्पररी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। ये टेम्पररी वैल्यू जो आई है ये अब आपने भेजी स्टार्ट में। तो लेट्स से टेम्पररी ने आपके एक वैल्यू अलॉट कर दी होगी आपको 20, और इस तरीके से नल करके। तो ये वैल्यू अब आप कहाँ पे चलेगी, आपके स्टार्ट में। ये वैल्यू आपके चलेगी स्टार्ट में। और अब आपने क्या किया कि स्टार्ट के नेक्स्ट में कौन सा पॉइंटर आ जाए, पी वाला। अब सपोज करो इस पी का एड्रेस है 1 2 3। सो इंस्टेड ऑफ दिस नल यहां पर आ जाएगा आपका 1 2 3। तो स्टार्टिंग में आपका 20 इंसर्ट हो जाएगा, इसका एड्रेस है लेट्स से 123। एक ये लिस्ट बन जाएगी और ये इट इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड योर पी। तो पी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 10 और null. So this is the implementation of our insert underscore begin. Now I am going to define my function called as insert underscore last. So the return type of my function is void and the name of my function is insert underscore last. So now I am going to implement this function. So let me just check कि इसका name मैंने insert underscore last ही दिया है, insert underscore last ही है। So now in this function I am going to make a use of a variable called as value. यहाँ पर भी आप यूजर से वैल्यू तो पूछोगे कि आपको
element last में insert कराना, so you are going to take a value from a user. So let's say either I am going to make a use of a cout statement /n. So I am going to ask enter any element लिया मैंने value लिया, okay, enter any value. Okay. And here I am going to take this value into Cin value. Understood? In the same scenario, I am going to declare here two variables of my pointer type, of my structure type, node star temp. और लेट्स से अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो इस टाइम मैं अलग नाम देता हूँ, स्टार एस मैंने नाम दे दिया, तो यहाँ पर आप टेम्प 1 टेम्प 2 नाम दे दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो सेम इन अ फंक्शन आई एम गोइंग टू कॉल माय फंक्शन क्रिएट अंडरस्कोर नोड, और यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पास कर दूंगा, तो टेम्पररी आपके पास एक नोड बना के दे देगा. अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज दिस एस वैल्यू विद अ वेरिएबल कॉल्ड एज स्टार्ट. अब मैंने एस को किससे इनिशियलाइज करा है, स्टार्ट के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय व्हाइल लूप. तो मैंने यहाँ पे बोला व्हाइल एस का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल. जब तक एस का एक्स नेक्स्ट क्या आता है, नॉट इक्वल टू नल हो जाए, तो एस इज इक्वल टू एस का नेक्स्ट. अभी ड्राई रन के साथ ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ऐसी स्टेटमेंट आपने क्यों लिखी है. आफ्टर दिस व्हाइल लूप आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट टेम्प के नेक्स्ट में आ जाएगा मेरा एक नल वैल्यू, एस के नेक्स्ट में आ जाएगी मेरी एक टेम्परेरी वाली वैल्यू. तो इसका ड्राई रन अभी आप करके दिखाओगे. ओके, और लेट्स से यहाँ पर मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिख दी, सी आउट /n एलिमेंट inserted at last. So now let's understand the diagram of inserting a last element. So let's say यहाँ पर आपने एक वैल्यू इंसर्ट कराई 40, और ये 40 आपके इस टेम्पररी फंक्शन के पास जाएगी. तो मतलब अगर जो आपकी नई वाली वैल्यू है वो एक है ना टेम्प नाम के फंक्शन के पास पड़ी है. लेट्स से एक टेम्प नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल बना होगा जिसमें आपकी 40 वैल्यू गई होगी. ओके, ये इस तरीके की आपकी 40 वैल्यू गई होगी, और उसके यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटर आ गया होगा नल. आपका टेम्प नाम का एक न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल है कुछ इस तरीके से. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आपको ये एलिमेंट जो इंसर्ट कराना है 40 कराना है एट द एंड ऑफ योर लिस्ट. तो यहाँ पर आपने ना एक एस वेरिएबल लिया और उसको आपने किससे इनिशियलाइज करा दिया, स्टार्ट के साथ. तो लेट्स से दिस इज माय स्टार्ट, और अब आपने इसको किसके साथ इनिशियलाइज करा रखा है, विद अ वेरिएबल एस. अभी मेरा एस कब तक आइटरेशन परफॉर्म करेगा, जब तक कि एस का नेक्स्ट क्या ना हो जाए, नल. तो जब तक एस के नेक्स्ट को क्या नहीं मिल जाती वैल्यू, नल वैल्यू नहीं मिल जाती. तो ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक इस पर नल वैल्यू नहीं मिल जाएगी. वंस इट इज गोइंग टू फाइंड द नल वैल्यू, तो अब आपका एस किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, अब आपका एस पॉइंट आउट करेगा इसकी तरफ. ओके, और इसके बाद लेट्स से आपने बोला कि टेम्पररी के नेक्स्ट में आ जाए नल की वैल्यू, तो टेम्पररी के नेक्स्ट में आपने क्या डलवा दी, नल की वैल्यू. और एस के नेक्स्ट में मीन्स दिस इज द एक्स के नेक्स्ट में क्या आ जाएगी आपकी टेम्पररी वैल्यू, एंड द लास्ट एलिमेंट विल गेट इंसर्टेड. So this is the concept of your inserting at the last. So now let's proceed further. एक और function जो हमारा रह गया वो रह गया display का. So now I'm going to implement the display function as well. So this is the return type of my function, and the name of my function is display. Now in this display function I'm going to create a variable of node type which is of my structure type. So node star temp is the name of my variable. The first step is to I am going to check कि अगर मेरा start के is equal to null है, means my linked list is an empty list. So I am going to check it over here. If start is equal to null, then I am going to write a statement cout linked list is
empty. तो यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी that my linked list is empty, and I'm going to make a use of a statement called as return. So it is going to return that the linked list is empty. Otherwise, in else part, I'm going to display the list. नहीं, not compulsory. So let's say instead of this else, तो मैं अपना while loop का यूज करूँगा क्योंकि मेरे को सारे ही एलिमेंट्स को आइटरेशन परफॉर्म करके दिखानी है. So let's say यहाँ पर मैंने जो टेम्प वेरिएबल लिया था इसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया विद माई स्टार्ट. ओके, इसको मैंने किससे इनिशियलाइज करा दिया? विद माई वेरिएबल स्टार्ट. एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टेटमेंट सी आउट स्लैश n elements of linked list so now I'm going to display the elements of my linked list. अब आपको कब तक आइटरेशन परफॉर्म करानी पड़ेगी? जब तक आपको नल वैल्यू ना मिल जाए. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई while, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ temp not equal to null. तो मेरी आइटरेशन कब तक चलती रहेगी? जब तक मेरे temp इज इक्वल टू null नहीं हो जाता, मतलब लिंक्ड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सी आउट. और अब आपको डिस्प्ले क्या करना है? आई हैव टू डिस्प्ले temp का इंफॉर्मेशन. तो temp के इंफॉर्मेशन में वो डेटा आपका एग्जिस्ट करता है. तो मैं यहाँ पर एक एरो बनाता हूँ. And finally, what exactly I'm going to do is temp is equal to temp का next. और यहाँ पर फाइनली एक मैं सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ. वो मैं लिख देता हूँ लेट्स से null, ताकि लास्ट एलिमेंट में आपकी एंट्री आ जाए null. So now click on save and execute this program. देखते हैं कुछ एरर वगैरह. So let's say वैसे पूछ रहा है फॉर एक मेन्यू ड्रिवन आ गया. प्रेस 1 फॉर इंसर्ट नोट एट द बिगिनिंग, प्रेस 1 फॉर इंसर्टिंग नोट एट द लास्ट, डिस्प्ले नोट्स एंड प्रेस 4 फॉर एग्जिट. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रेस दिस 3. तो 3 में अभी मैंने जब लिखा तो क्या लिखा हुआ? दैट अ लिंक्ड लिस्ट इज एन एम्प्टी राइट नाउ. सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन एग्जिट फंक्शन. तो मेरे दो फंक्शन चल रहे हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग. सो आई एम गोइंग टू प्रेस 1 insert note at the beginning. So I am going to insert 10 value. Enter your choice. Now I am going to display the notes. तो यहाँ पर आ गया 10 और null. Now I am going to insert the node at the last. So I am going to press 2 and the element which I want to insert at the last is 20. So now you can see that the element has been inserted at last. Now I am going to perform 3. So 10, 20 and null. अब एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं एट द बिगिनिंग में. सो आई एम गोइंग टू प्रेस 1, insert note at the beginning, and the element which I want to insert is this 30. Press 3. So now you can see that 30 has been inserted at the beginning. So this is the concept of your linked list. Now I am going to press 4 in order to exit.